everyone, my name is Shikha and welcome to Yopedia, the largest and the most authentic platform which is making you prepare for every kind of HR interview, right? So today I'm in this particular video going to provide a list of important and expected HR questions related to Bank of Baroda, right? So there are various posts has been came out in Bank of Baroda, and for which if you are also shortlisted and if you are going for the interview, there are very important questions you must prepare for your HR round, right? Maybe you can be very good in your banking sector or your technical field, but yes, of course, you need to be very good in your behavioral part, in your soft HR part, right? So I'm going to provide you a list of that particular question. In this particular documentation, you can see also it is containing all the important and relevant question which is of various domain in HR only, from leadership, management, problem solving skills, decision making skills. Lot of questions are there. Okay, so we'll discuss one by one. Let's get started that what are the important HR question for this. So this is Bank of Baroda, and yes, we are covering all these things: generic HR question, banking and financial related, decision making and problem solving, Bank of Baroda questions related to that, digital banking and innovations, banking sector in India, and Reserve Bank of India, right? Very important part. Starting with the generic HR question, but before that you must aware about that what is, from when it has been founded Bank of Baroda. It's a Indian state owned international banking, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जिसके हेडक्वार्टर वडोदरा में है. पहले उसको बड़ौदा बोला जाता था, नाउ इट्स वडोदरा इन गुजरात ओनली, राइट. एंड ये जो बैंक है दैट हैज बीन फाउंड इन द फ्रॉम द महाराजा ऑफ बड़ौदा, महाराजा सायजी राव, ठीक है, ऑन 20th जुलाई 1908. काफी पुराना है, 1908 में ये फाउंड हुआ था बेसिकली. एंड यस, उसके साथ अलोंग 13 अदर मेजर कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया वाज देयर, जो कि नेशनलाइज्ड हुए 19 जुलाई 1969 में, राइट. नाउ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज बीन डिजिग्नेटेड एज द प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. नाउ इट्स कम एज एन PSU related, you can say it out. Very important part, who is the chairman and who is the managing director of Bank of Baroda is, you can see. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका चेयरमैन कौन है या उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है. श्री देवादत्ता चंद इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ दिस. वेयर इज द हेड ऑफिस? दैट इज बड़ौदा भवन, दिस इज वडोदरा. आप इसको चेक कर सकते हो. नाउ कमिंग टुवर्ड द जेनरिक HR क्वेश्चन. जेनरिक HR क्वेश्चन सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है, दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Then coming towards your hobbies and interest, your strength, weakness, why do you want to be a part of Bank of Baroda? What do you know about the Bank of Baroda, when it has been established, when it has been found, right? Apart from this, what are the key products and services which are offered by the Bank of Baroda? Who is the chairman? These are some generic HR questions, right? Apart from this, these are some another generic questions, you can say it out. How do you prioritize multiple tasks and manage time efficiently? ठीक है. How do you handle work pressure and tight deadlines, right? Had a time when you had to resolve a conflict in your team. What motivates you to perform well in your job? How do you handle feedback and criticism? को आप कैसे handle करेंगे? Where do you see yourself in next 5 years? What is your vision in your life, right? Coming towards the leadership and team management. Now ये बहुत ज़्यादा important है. आप बैंक ऑफ बड़ौदा में किसी भी पोजीशन के लिए अगर आप जाते हैं, इवन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप लोग बोलते हैं कि आई हैव गुड लीडरशिप स्किल, आई हैव गुड मैनेजमेंट स्किल, एंड ऑब्वियसली दे वुड एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू शुड हैव दीज काइंड्स ऑफ स्किल्स. उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड टू मेक इट चेक कि आप सीरियसली आपके पास वो स्किल्स हैं या नहीं, सो ऑब्वियसली दे विल आस्क यू दिस अ लिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, आप कैसे टीम को मैनेज करते हैं, आप कोलैबोरेशन को और मोटिवेशन को कैसे इंश्योर करेंगे. कोई सिचुएशन बताइए जब आपकी टीम ने कोई गोल अचीव किया हो, ठीक है. अंडर परफॉर्मिंग टीम मेंबर को कैसे हैंडल करेंगे आप, ठीक है. रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल करेंगे विद द चेंज इन टीम. एंड स्ट्रैटेजीज बताइए एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए. डिसएग्रीमेंट विद सीनियर मैनेजमेंट के साथ कैसे हैंडल करेंगे, राइट. हाउ डू यू डेलीगेट टास्क इफेक्टिवली. कुछ स्टेप्स बताइए जो बेसिकली टीम मेंबर्स को अपडेट रखने के लिए आप इंश्योर कर सकते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग रेगुलेशंस. ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू बिल्ड अ हाई परफॉर्मिंग टीम इन बैंकिंग एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टुवर्ड्स द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ऑब्वियसली whether you are from the same industry or you are from the same different background,
यू मस्ट अवेयर अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उसकी बेसिक गवर्निंग बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, ये कंसेप्ट बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो आपको जरूर वो चीजें प्रिपेयर करनी है। दे विल श्योरली आस्क यू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा's हिस्ट्री एंड सर्विसेज। अभी हमने डिस्कस किया, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को कैसे अपडेट रखेंगे लेटेस्ट बैंकिंग रेगुलेशंस और ट्रेंड्स के साथ, ठीक है। बिगेस्ट चैलेंजेस बताइए इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक का, और अपॉर्चुनिटीज बताइए। बहुत ही जेनरिक और कॉमन क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। टेक्नोलॉजी कैसे इंपैक्ट कर रही है बैंकिंग ऑपरेशंस पे, स्पेसिफिकली इन द फ्यूचर कैसे करेगी। कोई सिचुएशन आप कैसे हैंडल करेंगे जहां पे क्लाइंट जो है वो डिससेटिस्फाइड है बैंक की सर्विसेज के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन बैंकिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है एज पर योर रोल, ठीक है। आपका जो है बैंक कैसे इंप्रूव करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, एंड व्हाट रोल डू सीनियर मैनेजर्स प्ले इन रिस्क मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजर्स का क्या रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट में। आप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को, डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स को कैसे हैंडल करेंगे, और स्ट्रैटेजीज बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो यूज की जा सकती है उसकी मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए। Decision making and problem solving, these are another 2 parameters of your personality which is going to be checked. So yes, of course, आपने कोई difficult decision लिया हो under pressure, वो कोई situation बताइए। कोई आपने tough financial decision लिया हो, आप ethical dilemmas को banking sector में कैसे handle करेंगे, जो कि बहुत ही hectic होता है कई बार, ठीक है। customer complaint को आप कैसे लेंगे basically about unethical banking practices, how do you deal, how do you react with that। कंफ्लिक्ट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं बैंक में, बहुत वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, उनके साथ कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, तो हाउ डू यू हैंडल, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजन अपने बैंक के लिए, कोई स्टेप्स आप लेंगे उसके लिए, ठीक है। कोई सिचुएशन जब आपके टीम मेंबर्स किस डिसीजन के साथ डिसएग्री हैं, डील कोई ऐसी सिचुएशन व्हेन यू हैव टू डील विद अ हाई वैल्यू क्लाइंट इज अबाउट टू लीव द बैंक और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन द बैंक, राइट। क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा से स्पेसिफाइड क्वेश्चंस क्या आते हैं ये आपको जरूर पढ़ना है। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है। डिफरेंशिएट बताइए कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पब्लिक सेक्टर बैंक से अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है। कोर वैल्यूज और मिशंस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग का बैंक ऑफ बड़ौदा की मार्केट प्लेस पे या मार्केट वैल्यू पे या इसकी सर्विस एंड प्रोडक्ट्स पे क्या इसके इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, ये पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एज यू कैन सी आई कैन से कुछ रीसेंट इनिशिएटिव बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है, इन डिजिटल बैंकिंग ऑल्सो, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ रूरल इंडिया। की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, CSR इनिशिएटिव भी पता होने चाहिए। Challenges faced by public sector banks in India today, and how does bank ensure compliance with regulatory and risk management guidelines, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद आता है क्वेश्चन ऑन डिजिटल एंड बैंकिंग इनोवेशन। ये डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन पे जरूर आएगा, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। सी बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे इंटीग्रेटेड है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज फॉर इट्स कस्टमर, क्या उसकी कोई एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो कैसे उसके कस्टमर्स ऑनलाइन या डिजिटलाइजेशन का मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। की फीचर्स ऑफ बैंक्स मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसके कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ फिनटेक पार्टनरशिप्स ऑन ट्रेडिशनल बैंकिंग, ठीक है। लेटेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्टेड बाय बैंक टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बीइंग यूटिलाइज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर, कैसे, एंड डेटा एनालिटिक्स क्या रोल प्ले कर रहा है डिजिटल बैंकिंग में। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल वॉलेट्स एंड यूपीआई ऑन ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे हैंडल करता है डिजिटल कस्टमर ग्रीवेंसेस इफेक्टिवली। फ्यूचर ट्रेंड्स बताइए इन डिजिटल बैंकिंग जो बैंक्स को फोकस करने चाहिए टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। करंट बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेन टाइप ऑफ अकाउंट्स बताइए जो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर करता है, एंड हाउ डज द बैंक सपोर्ट SMEs बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। एडवांटेजेस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा's वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। हाउ डज बैंक सपोर्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। फाइनेंशियल स्कीम्स डज द बैंक ऑफर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है।
एक्सप्लेन द वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा, कैसे जो है बैंक इंश्योर करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन रिटेल बैंकिंग, की फैक्टर्स बताइए जो इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरेस्ट रेट को डिसीजन एट द बैंक, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, स्ट्रक्चर बताइए इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का क्या होता है। इसके अलावा वेरी कॉमन क्वेश्चन विच आई पर्सनली यूज टू आस्क, बेसिकली यू कैन से इट आउट कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है, आरबीआई का एक्ट के रिलेटेड इसको आप कैसे अलाइन करेंगे, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी कैसे जो है ट्रांसफॉर्म हो चुकी है बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया में, राइट। आई वुड से रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक क्या है, मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडियन बैंकिंग सेक्टर, significance of financial inclusion in India, difference between retail banking and corporate banking, importance of non-banking financial companies in India, ये बहुत important है, प्लीज इसको जरूर पढ़ लेना। Digital payment systems impact traditional banking and role of cooperative banking in Indian economy. Reserve Bank of India से related question, obviously this is the regulatory body of all the banks. So yes, क्या रोल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंडियन इकोनॉमी में, एंड मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन कीजिए फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऑफ कैसे रेगुलेट करता है इंडिया में, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस बताइए फॉर बैंक, रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, आरबीआई रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया कैसे रेगुलेट करता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये दो कंसेप्ट आपको जरूर पता होने चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूरेटरी लिक्विडिटी रेशियो की क्या सिग्निफिकेंस है, मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय आरबीआई इन रिसेंट ईयर्स, एंड हाउ डज आरबीआई रेगुलेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम। सो दीज आर सम क्वेश्चन फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया से रिलेटेड। मेजर कंपोनेंट्स बताइए इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के कौन कौन से हैं, डिजिटल बैंकिंग कैसे इंपैक्ट करता है फाइनेंशियल सेक्टर को, SEBI इट्स अ गवर्निंग बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, इसका क्या रोल है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में, एनबीएफसी कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कह सकते हो आप कॉर्पोरेशंस और कंपनीज, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बताइए इंडिया में, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे इंपैक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, रीसेंट ट्रेंड्स इन फिनटेक इन इंडिया, एंड रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है इंडिया में, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, एंड व्हाट आर द रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। बैंकिंग रेगुलेशंस इन इंडिया से कुछ आ सकता है कि कुछ रेगुलेशंस के बारे में, पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, बैंकिंग लॉज क्या हैं इंडिया में, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कैसे इंपैक्ट कर रहा है बैंकिंग ऑपरेशंस को, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसल नॉर्म्स इन बैंकिंग, SEBI का रोल बताइए फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने में, राइट। आरबीआई गाइडलाइंस ऑन NPA, राइट, हाउ डज द SERF एक्ट हेल्प इन डेब्ट रिकवरी, regulatory requirement for opening a bank branch in India, importance of KYC in compliance in banking, key provisions of insolvency and bankruptcy code, and how does bank prevent fraud and ensure cyber security, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। व्हाट इज द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन बैंकिंग रेगुलेशन, फंक्शंस ऑफ SEBI, IRDAI एंड PA। SEBI और IRDAI ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको जरूर पढ़ लेना। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नाबार्ड, गवर्नमेंट सपोर्ट SMEs थ्रू बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक है। रोल ऑफ द एग्जिम बैंक इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मुद्रा लोन्स इन इंडिया, हाउ डू गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्ट द बैंकिंग सेक्टर, एंड व्हाट आर द लेटेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन डिजिटल फाइनेंस। करंट इश्यूज इन बैंकिंग, ये करंट से जरूर पूछा जाएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मेन कॉजेज ऑफ राइजिंग NPAs इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, हाउ डू बैंक मर्जर्स इंपैक्ट द फाइनेंशियल सेक्टर, चैलेंजेस ऑफ डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया, ग्लोबल इकोनॉमिक जो है अनसर्टेनिटी अफेक्ट इंडियन बैंक्स कैसे कर रही है, क्रिप्टो करेंसी का बैंकिंग में क्या रोल है, ठीक है, रिस्क एसोसिएटेड विद द मोबाइल बैंकिंग, हाउ डू बैंक टैकल साइबर फ्रॉड, एंड ऑफ कोर्स इम्पैक्ट ऑफ फिनटेक स्टार्टअप ऑन द डिजिटल बैंकिंग, इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट द बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। So yes, these are some important questions related to various HR domain. ये आप जरूर प्लीज पढ़ लेना, as per this is very very important from the banking industry point of view, I can say, right? So I have covered all the important HR questions related to various domain, financial related, RBI related, you can say current issues related for the banking sector, Bank of Baroda, leadership, management, decision making, generic HR question. So all the domains we have covered under one umbrella. So make sure you guys need to be prepared it well.
by attending various HR and mock sessions with Yourpedia. This is the largest platform, I can say, which is making you prepare for every kind of interview. So if you also want to prepare, you can have the access of this documentation from Yourpedia panel. You can download it and read it again. And also you can prepare it well with Yourpedia mentors. So good luck, all the best.